Good morning, everyone. Again, we are going to start the next session of science. In this session, we will start animal fiber. What we will start? Animal fiber. And as I have discussed that there are two type of natural fiber, animal and plant. But in your course, it is only animal fibers. Animal fiber, the first animal fiber that I have taken, that is wool. It is obtained from body coat of some animals. It is very important to understand from where it is obtained. It is obtained from body coat of some animals. ये कुछ animals की हम body coat पे से लेंगे. And that we obtained from the body coat of animal that contain very fine, soft and thin hair, very fine and soft hairs. And the body coat which contain that fine and soft hair, that is known as fleece. What it is known as? Fleece. F-L-E-E-C-E. And how many animals are there from where we can obtain the fleece? Like sheep. Yes, you can give the answer. Good. Like goat. Like camel, like yak, etc. So these are the animals by which we can obtain the fleece. Fleece, that means a body coat which contain fine soft hairs close to their skin. And the wool which we make from that, you have heard about it, that like Angora. It's Angora wool, like Pashmina wool, and like Shantosh. So these are the examples of wool that we obtain. And basically the cloth that we made by wool, these are woolen clothes. And these woolen clothes especially protect us from cold, and that's why we wear it into winter. How they protect us? They trap air. That means the air which is present there, they trap that air. And we all know that air is a poor conductor of heat. Means air बहुत ज़्यादा heat को conduct नहीं करती है, नहीं लेती है. So that's why जो हमारी body की heat है, उसको ये अलाउ ही नहीं करेगा कि वो हमारी बॉडी से निकल के बाहर के एनवायरमेंट में जाए. सो इट डज नॉट अलाउ आवर बॉडी हीट टू एस्केप मीन्स उसका बाहर निकलना अलाउ नहीं करेगा. और क्योंकि उसने अलाउ नहीं किया, सो दैट्स व्हाई दिस कीप्स आवर बॉडी वार्म. ये हमारी बॉडी को क्या रखेगा? वार्म रखेगा. नाउ द नेक्स्ट वन in which we will learn that how we can make wool from fleece. हम उस फ्लीस में से जो हमने एक लेयर ली थी उसमें से वूल हम कैसे बना सकते हैं? देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ दैट, एंड दीज डिफरेंट स्टेप आर टू बी परफॉर्म्ड वन आफ्टर अनदर. सो द फर्स्ट वन इज shearing. What is shearing? In the shearing step, we remove off fleece with a thin layer of dead skin. देखिए एनिमल्स को बहुत दर्द होगा अगर आप उनकी स्किन पे अगर जरा भी कुछ हार्म होता है. तो जैसे हमें दर्द होता है कि हमारी स्किन पे जरा सा कुछ जल जाए, कुछ हो जाए, कुछ कट लग जाए, ऐसे ही एनिमल्स को भी बहुत दर्द होगा. तो हम ये ध्यान रखा जाता है कि जो सबसे बाहर वाली डेड स्किन है, सिर्फ और सिर्फ उस डेड स्किन के साथ फर को लिया जाए, अंदर डीप स्किन में कट ना लगे. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज shearing. After shearing, scouring is the process. In the scouring, the dead skin, the layer, the fleece, that contain a lot of dirt, grease. So that is to be cleared. So clearing of sheared fleece as it contain dirt and grease. और किसी भी ऐसी चीज को क्लियर हम कैसे करते हैं? जैसे हम अपने कपड़ों को अगर कोई ऐसा बहुत ज्यादा स्टेन लग जाता है तो उनको हॉट वाटर और डिटर्जेंट मिला के धोते हैं. सो इट कैन बी डन बाय डिटर्जेंट एंड हॉट वाटर. After that, the next step is sorting. हमने पहले फ्लीस लिया, फिर उसको क्लीन किया, और अब हम क्या करेंगे? उसमें से सेपरेट करेंगे हेयर्स को, क्योंकि स्किन के साथ हेयर्स हैं अभी.
उसमें से हेयर्स को सेपरेट किया जाएगा ऑफ डिफरेंट टेक्सचर, मीन्स कुछ बहुत स्मूथ हैं, कुछ रिंकल्ड हैं, तो कुछ इस टाइप के हेयर्स को हम अलग करते हैं। क्योंकि ये जो हेयर्स हमने लिए ये सिर्फ 3 कलर के हो सकते हैं, दे मे बी वाइट, दे मे बी ब्राउन और दे मे बी ब्लैक। तो अब हम तो मार्केट में देखते हैं बहुत वैरायटी ऑफ कलर की वूल मिलती है, तो उसको क्या किया जाता है, डाई किया जाता है। आफ्टर दैट वी विल डाई इट। सो व्हाइट, ब्राउन, ब्लैक फाइबर आर डाइड इनटू डिफरेंट कलर्स। तो पहले हमने फ्लीस लिया, फिर उसको क्लीन किया, फिर उसके हेयर्स को अलग किया, अब हमने उसको डाई किया। आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप दैट इज स्पिनिंग। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? स्पिनिंग। स्पिनिंग में हमने क्या काम किया, वो जो डाइड फाइबर्स थे उन फाइबर्स को हमने ट्विस्ट किया आपस में और फिर उनसे बनाए थ्रेड। फाइबर्स को भी ट्विस्ट करके थ्रेड बनेगा और फिर थ्रेड से फाइबर बनेगा, सॉरी नॉट फाइबर, फैब्रिक। तो थ्रेड को हमने ट्विस्ट किया और उससे थ्रेड बनाए और उन थ्रेड्स को क्या बोला जाता है, यार्न। व्हाट दे आर नोन एज यार्न। ये जो थ्रेड हमने बनाए ये 2 टाइप के हो सकते हैं, लॉन्ग थ्रेड भी हो सकते हैं, शॉर्ट थ्रेड भी हो सकते हैं। अगर लॉन्ग थ्रेड हैं तो उनका यूज हमने किया स्वेटर्स बनाने में, मफलर्स बनाने में, कैप, ग्लव्स, सॉक्स। और जो शॉर्ट थे उनको हमने स्टफिंग के लिए यूज किया अंदर, जैसे हमारी जैकेट्स में अंदर बारीक बारीक फाइबर्स फिल रहते हैं, भरे रहते हैं, तो कोट बनाने के लिए, ट्राउजर्स में फिल करने के लिए, जैकेट्स में फिल करने के लिए या शॉल बनाने के लिए। सो दीज आर द मेथड। अगेन यू कैन सी हेयर shearing, scouring, sorting, dyeing, spinning, and then we get the 2 type of thread. I think it is enough for you. Goodbye. Have a nice day.